morning students, this is your computer class. So as you know, we were doing mail merge in the previous of our videos, so today we will be doing its practical. Since you have not asked me any other doubt regarding mail merge, I hope you have seen the video, gone through it and done and you have done every exercise in your copy and book. Now you have not asked me any questions regarding the explanation of mail merge. I'll consider it as things are clear to you. So now today we'll be moving forward and doing the practicals of our mail merge. So students, I told you first we have to go to mailings. Why? Because mail merge. Since it's mail merge, where we can find it? We can find it in mailings option. Okay, here we will click on mailings. There are so many options here. We have to click on mailings and see यहाँ पे सारे उसके नीचे के ऑप्शंस चेंज हो गए अचानक से, बिकॉज वी क्लिक्ड ऑन मेलिंग्स. ऑप्शन चेंज हुआ एंड उसके अंडर के जितने भी फीचर्स थे वो भी चेंज हो गए. ओके, नाउ यू कैन सी स्टार्ट मेल मर्ज हियर. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ वील गो टू दिस, क्लिक ऑन दिस एंड लास्ट स्टेप पे हमको दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. ठीक है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा जो राइट साइड होगा स्क्रीन का, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन अपीयर होने लगेंगे. यू विल सी. ओके, एज आई क्लिक ऑप्शन आ गए. ठीक है, राइट साइड पे. नाउ लेट्स सी क्लियरली. अभी ये ऊपर मेल मर्ज लिखा है एंड स्टेप्स जहाँ पे आपको मेन जो काम करना है वो सारी चीज़ें बॉटम पे लिखी हुई हैं. सो दिस इज़ अ कंप्लीट पेन ऑन द राइट साइड. Okay, so now this is the document that I have to send to send it to so many people. Okay, I won't write it again and again. I'll just write the things I need once and merge it with this constant document and send it to everyone. How am I going to do it? Now this is a letter format, so I'll choose letter itself. Letter was already chosen, so I won't do anything here. Now we'll go to next is starting document. First option, very first option states as starting document, so we'll click on starting document. Now as I clicked on the starting document, right side पे सारे options में changes आपको दिख गए होंगे. Okay, now here in the this step it will ask me how do I want to set up my letter. So it will give me three options here. So first is the current document. Now as I have typed my letter here, this is my current document. I'm working on it, so I will choose this current document. Start from a template on the other hand means कि कोई बना बनाया सा format होगा आपके कंप्यूटर में, you can use that one. And start from an existing document means you must have made some previous document that you have to use again. You can choose from that existing document, but I just typed my letter here, so this is my current document and I have to work on it, so I will choose this one, use the current document. Okay, and so will you when you will do your practical. Okay, see this, I chose it, and now at the bottom of the page you will see step 2 of 6. अभी तक step 1 of 6 था, अभी step 2 of 6 आ गया है. Okay, let's zoom it and see. Students, you know this video is available and you have been telling me that video is not clear. Students, if you use it properly it will be clear. Okay, I am trying my best to make things clear to you so that everything is clear to you. It's not like I am doing it on purpose, it just happens. I make sure things are clear to you. Okay, here you see step 2. Now next is select recipients. Now students, kindly pay attention to this step, since सबसे ज़्यादा confusions बच्चों को इसी step पे होती है. ओके, select recipients पे ये बहुत easy है students. एक बार आपने ध्यान दे लिया आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी. ओके, it's nothing difficult. So अभी हम क्या करेंगे, we will go to this one, next select recipients, and I selected my recipients. Now ऊपर के options भी change हो गए. सॉरी, ऊपर के ऑप्शंस भी चेंज हो गए. अभी यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे. ओके, यू कैन सी दीज 3 ऑप्शंस.
अभी मीनवाइल मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे अभी जूम नहीं किया स्टूडेंट्स. ऑल द चेंजेस आई एम मेकिंग आर ऑन द राइट साइड, सो दैट्स आई एम जूमिंग ऑन दिस पार्ट so that everything is clear to you. I hope you don't have any problem. If you still face any problem, kindly tell me in the comment section. I'll make sure to sort it out in the best way. Okay, so select recipients पे हम लोग आ गए. अभी यहाँ पे भी हमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं. सिलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमने पहले ही एक लिस्ट टाइप करके रखी होगी, हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड होगी, तो हम लोग उसको चूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम इस पे जाएंगे तो यहाँ नीचे ब्राउज लिखा हुआ है, ब्राउज पे जाएंगे, वहाँ पे हमको ऑप्शन दे देगा कि हमें कौन सी लिस्ट यूज़ करनी है. तो आप अपने ऑप्शंस में से जो आपकी कन्वीनियंट लिस्ट होगी आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, ये एक फीचर होता है स्टूडेंट्स जिसको हमें अभी नहीं यूज़ करना है. इट विल कन्फ्यूज यू, सो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, बट इट इज़ अ फीचर इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप in which you have already saved your contact. You can use it to complete your mail merge. Okay, and now the option that we will choose is type a new list. क्योंकि ना हमारे पास पुरानी लिस्ट है ना हमारे आउटलुक कॉन्टैक्ट में हमने कुछ सेव किया है, हमें एकदम फ्रेश न्यू लिस्ट टाइप करनी है. तो हम इस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जहाँ ब्राउज लिखा है ना वहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएगा. ओके, सी चेंज हो गया ना. यहाँ पे क्या लिख के आ गया, क्रिएट. नाउ वी हैव टू टाइप अ न्यू लिस्ट. तो हमें वो क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना कंप्यूटर के पास है नहीं वो लिस्ट हमारे पास है. ओके, सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट एंड एज आई विल क्लिक ऑन क्रिएट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा यहाँ पर. ओके, पे अटेंशन. रेडी, सो आई क्लिक्ड ऑन क्रिएट. सी न्यू ऑप्शन आ गया. अभी यहाँ पे ये मेरी रेसिपिएंट लिस्ट है. ओके, रेसिपिएंट लिस्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस गिवन हियर, है ना. नाउ राइटिंग सो मेनी ऑप्शंस इज नॉट एट ऑल कन्वीनियंट, सो देयर इज वन मोर गुड फीचर हियर इन विच you can add options according to your preferences. How am I going to do that? ये dialog box, I'm sorry the camera is moving a lot, I hope it's constant now. Okay, now मुझे कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, इतनी सारी चीज़ों का मुझे काम नहीं है, तो मैं उसको क्या करूँ, मैं कैसे चेंज करूँ, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल गो टू कस्टमाइज कॉलम्स. ये दिख रहा है आपको, आई एम मूविंग माई कर्सर. ओके, दिस इज कस्टमाइज कॉलम्स, आई विल गो हियर. अभी यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ गए ना, इतना सारे लिखेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, और इतने का काम भी नहीं है. सो वी विल कीप व्हाट वी वांट एंड डिलीट व्हाट वी डोंट वांट. यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स. अभी ऐड में हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको इसमें चाहिए और वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो आप ऐड पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो. और डिलीट तो इसलिए है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, यू डोंट वांट एनी ऑप्शन हियर इन दिस लिस्ट, यू कैन ईजिली डिलीट इट. लेट्स सी, टाइटल पे हमने क्लिक किया एंड आई वांट टू डिलीट टाइटल. यस, डिलीटेड. I want first name, I want last name, I don't want company name, I will delete this one as well. Deleted. Okay, students, now all of you have been telling me that I have used English a lot, but it's not there. Every step that I am explaining, हर वो step जो मैं English में आपको बता रही हूँ वो मैंने हिंदी में भी आपको बताया है. If you are facing any problem, kindly tell me in the comment section. Do not use any other way. Okay, now I want address line 1 as well. ये अगली वाली लाइन मुझे चाहिए, लेकिन address line 1 के नीचे जो address line 2 है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँगी. यहाँ पे पूछेगा कंफर्मेशन कि आपको ये डिलीट करना है, यू विल क्लिक ऑन येस. हाउएवर अगर आपने उस पर गलती से क्लिक कर दिया है, आपको वो डिलीट नहीं करना है, तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो. ओके, डिलीटेड. आई वांट सिटी, आई डोंट वांट स्टेट. डिलीट. ओके, जिप कोड ज़रूरत नहीं है, डिलीट. कंट्री और रीजन नहीं ज़रूरत है हमें, वी विल डिलीट इट. होम फोन हमें नहीं चाहिए, डिलीट इट. वर्क फोन भी हमें नहीं चाहिए, डिलीट इट. ईमेल एड्रेस भी हमें नहीं चाहिए, डिलीट इट. ओके, सो वी आर लेफ्ट हियर विथ ओनली 4 ऑप्शंस, जिसका हमें ज़्यादा काम था तो हमने उसको रख लिया. ओके, अभी
if there is something you want to add, chalo, we are adding my field. Okay, I'll write relation. ये मैंने ऐड कर दिया. ओके, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, बट स्टिल आई एम एडिंग इट जस्ट टू शो यू. ओके ओके, सो रिलेशन ऐड हो गया. सी, इजी ना स्टूडेंट्स. नाउ आई वांट रिलेशन टू मूव अप. ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद मैंने रिलेशन ऐड कर दिया और एड्रेस लाइन 1 ऐड कर दिया. Now you saw how I added relation. I don't really need it in my list, so I'll delete it as well. Yes. Okay. So see, easy na students. Now I am satisfied with my list. ये list मुझे ठीक लग रही है. I want to go with it. तो अभी ये पूरा अपना काम करने के बाद I will click on OK. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता है ना कि हमारी लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री है हमारे अकॉर्डिंग, तो उसको बताना पड़ेगा ओके पे क्लिक करके. अभी जो ऑप्शंस हमने रखे थे आपने देखा सारे वो ऊपर आ गए. अभी कितने सारे थे ना यहाँ पे. नाउ इट इज़ ओनली 4 इन नंबर. सो नाउ वी विल बी टाइपिंग आवर लिस्ट. ओके, पहली लिस्ट हम टाइप करेंगे, उसके बाद हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे दूसरी लिस्ट टाइप करने के लिए. तो पहली लिस्ट हम टाइप कर लेते हैं अशोक. उप्स, आई टॉक. ओके, अशोक सिंह ओके, इंद्रपुरम. This is just students, I just imagined this address. There is no such address. Okay, Indrapuram, and let's keep it to Lucknow. Okay, now मेरी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स. आई वांट माय सेकंड एंट्री. ठीक है, पहली एंट्री मैंने चारों ऑप्शंस में लिख दी है. अब मुझे सेकंड एंट्री करनी है, तो उसके लिए न्यू एंट्री. यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी न्यू एंट्री ऑप्शन यहाँ पे है. ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया न्यू एंट्री. ओके, आई विल टाइप अनदर नेम. आई विल टाइप रिया पांडे. ओके, she can live near Golgar. नेक्स्ट एंट्री के लिए अगेन आई विल गो टू न्यू एंट्री and I'll type Aarti Rai civil lines. Okay, now 3 must be enough, but let's type once more. Okay, Arun Srivastav. Oops. गांधीनगर. ओके, लखनऊ.
Okay, so I think 4 in my list are enough. I just want them in my party, so I have typed their name. Now I will have to give an confirmation students. Okay, ये मैंने confirmation जो है मुझे कैसे मिलेगी, इनको मुझे कैसे confirmation देनी है इस ऑप्शन को, यहाँ पे ओके पे क्लिक करके माई लिस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू मी, मुझे और किसी को नहीं बुलाना है. अब ये सब क्लिक करके सारे ऑप्शंस को ऐड करके ओके, ठीक है. ओके पे क्लिक करने के बाद मुझसे बोला जाएगा कि जो मैंने अभी लिस्ट बनाई है इसको मुझे सेव करना पड़ेगा. ओके, सो आई विल गिव माई फाइल अ नेम. इस फाइल को मुझे एक नेम देना पड़ेगा. जो मेरी रेसिपिएंट की लिस्ट है मुझे उसको एक नेम देना पड़ेगा जिसका नाम है लेट मी कॉल इट बर्थडे. ओके, बर्थडे 2. ओके, बर्थडे 2 मैंने इसका नाम रख दिया है सो दैट आई डोंट गेट एनी कंफ्यूज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. ओके, सो सेव इट, सेव बर्थडे 2. एंड सेव करने के बाद मेरे पास ये लिस्ट आ गई मेल मर्ज रेसिपिएंट्स की. दिस इज़ माई लिस्ट. ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद द लिस्ट, सो आई क्लिक ऑन ओके. मैंने उसको कर दिया है क्लिक. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा मुझे. तो बॉटम ऑफ द पेज पे जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप, राइट योर लेटर. नाउ स्टूडेंट्स यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज राइट योर लेटर सिंस माय लेटर इज ऑलरेडी रिटन हियर. सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको दिखाया ये मेरा कांस्टेंट वाला हिस्सा है, ठीक है. और अभी मैंने रेसिपिएंट लिस्ट भी टाइप कर दी जो वैरी करती है, यानी कि रेसिपिएंट लिस्ट चेंज होती रहती है. हर इंसान अलग जगह रहता है, उसका अलग नाम है ना. तो अभी मुझे क्या करना होगा, आई विल हैव टू सॉरी, आई विल हैव टू मर्ज बोथ दीज पार्ट्स. यानी कि जो चेंज होने वाला डेटा सोर्स है वो भी, और जो मेरा कांस्टेंट लेटर है जो मुझे चारों लोगों को भेजना है वो भी. तो मुझे ये 4 बार लिखना नहीं पड़ रहा है, बस उन सब की डिटेल्स को एक बार ऐड करके मुझे इस लेटर के साथ उसको मर्ज कर देना है. ओके, सो स्टेप 3 ऑफ 6. यहाँ पे हम गए, हमने इसको बॉटम ऑफ द पेज पे क्लिक कर दिया और जैसे ही उसको क्लिक किया ऊपर में ऑप्शन हमने देखा चेंज हो गए. सो स्टूडेंट्स, अभी जो मेरी डेटा जो मुझे ऐड करना है इसमें अपना पूरा डेटा सोर्स, वो मैं कैसे करूँगी. मुझे आई विल हैव टू गो टू मोर आइटम्स. लास्ट में आपने देखा मोर आइटम्स लिखा है, मोर आइटम्स पे क्लिक किया, एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर कर गया. अभी स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू ऐड फर्स्ट. ओके, आई will have to first take the cursor to the place where I want to add my things. मतलब अगर मुझे यहाँ ऐड करना है तो मुझे कर्सर को यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो कर्सर जहाँ रहता है वो यहाँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी जो मुझे इंसर्ट करना है. अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो यहाँ पे चीज़ इंसर्ट हो जाएगी. इसलिए ध्यान देना है कि कर्सर उधर ही रखा जाए जहाँ पे हमें अपनी लिस्ट को ऐड करना है. तो 2 के बगल में नहीं, मुझे 2 के नीचे ऐड करना है. सो स्टूडेंट्स, 2 के नीचे ऐड करना प्रॉपर लेटर फॉर्मेट में भी आता है. एंड सेकेंड, आपको यहाँ पे क्लियरली स्पेस में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे चीज़ें ऐड करने के लिए रखी हुई हैं. ओके, नाउ दैट आई हैव मूव द कर्सर हियर, आई विल गो टू द राइट साइड एंड क्लिक ऑन मोर आइटम्स. मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, मेरा नया डायलॉग बॉक्स एकदम सामने सामने अपीयर हो गया. अब मुझको पहली चीज़ जो ऐड करनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू ऐड इज़ फर्स्ट नेम. सॉरी स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेम मैंने ऐड कर दिया. इंसर्ट फर्स्ट नेम इंसर्टेड. ओके, लेट्स सी इट क्लियरली. फर्स्ट नेम इंसर्टेड. नाउ आई वांट टू इंसर्ट सेकंड नेम ऑल्सो. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गैप देना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों फर्स्ट नेम और सेकंड नेम जो नेम है ना हमारे, वो एक साथ स्टिक होके यहाँ पे आ जाएंगे. सो गिविंग स्पेस इज नेसेसरी. अभी हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया. विल अगेन गो टू मोर आइटम्स. फिर से यहाँ पे आ गया ऑप्शन हमारा. अभी लास्ट नेम आई वांटेड टू ऐड हियर, इंसर्ट. लास्ट नेम सेलेक्ट करके इंसर्ट पे ऐड कर दिया एंड सी इंसर्ट पे लास्ट नेम आ गया. ओके, नाउ आई क्लिक ऑन एंटर. अगली लाइन में आ गए, क्लियरली दिख रहा होगा. यहाँ पे बहुत बड़ा सा स्पेस आ गया. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझको नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है. मोर आइटम्स पे फिर जाऊँगी. आई विल क्लिक ऑन एड्रेस लाइन 1 एंड इंसर्ट. इंसर्ट आराम से हो गया है ना. नाउ नेक्स्ट चीज़ मुझे अगली लाइन में ऐड करने का मन है. सो आई फर्स्ट मूव माई कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन बाय प्रेसिंग एंटर एंड
मोर आइटम्स पे गए, लास्ट ऑप्शन आया मेरा सिटी, आई क्लिक ऑन सिटी एंड इंसर्ट, डन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू मस्ट बी थिंकिंग कि अभी यहाँ पे बात खत्म, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे भी कुछ इंसर्ट करना है तो बेशक आप यहाँ पे पहले कर्सर ले जाइए, देन गो टू मोर आइटम्स एंड you want to insert first name. Since it's an informal letter, you can insert first name here and it's done. Okay, यहाँ पे ये हो गया मेरा काम। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ एंटर करना होता ना तो यहाँ पे आप कर देते और यहाँ पे कर्सर आप मूव कर देते और फिर मोर आइटम्स पे जाके आपको क्लिक करना होता और इंसर्ट पे क्लिक करना होता तो यहाँ पर भी वो ऐड हो जाता। ओके, दिस इज हाउ द स्टेप वर्क्स। लेकिन अभी मेरा काम जो था वो इतने में पूरा हो गया है, सो आई एम नॉट गोइंग देयर, आई हैव जस्ट डन इट टिल हियर। ओके, अभी मेरा जो मर्जिंग वाला पार्ट था वो मैंने कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ अभी मुझे देखना है कि जो मैंने ओरिजिनल लिस्ट डाली है वो ओरिजिनल लिस्ट के नाम, एड्रेस वगैरह के साथ ये मेरा लेटर कैसा लगेगा। सो आई विल गो टू द बॉटम ऑफ दिस पेज अगेन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप विच इज प्रीव्यू योर लेटर्स। तो प्रीव्यू योर लेटर्स करते ही जैसे मैंने क्लिक किया वैसे ही नाम आ गया, देखा। अभी तक यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी और यहाँ पे फर्स्ट नेम था ना, लेकिन जैसे ही उस स्टेप पे क्लिक किया हमने वैसे ही ये देखो क्या हो गया, ओरिजिनल लिस्ट वाला आ गया मेरे पास। ठीक है, नाउ दिस इज माई रेसिपिएंट 1। आई कैन सी माई नेक्स्ट रेसिपिएंट बाय गोइंग हियर, यू सी दिस एरो पार्ट, इसको क्लिक किया, 4 रेसिपिएंट्स हमने ऐड किए थे। नेक्स्ट रेसिपिएंट पे जाने के लिए एरो पे क्लिक कर दिया, रेसिपिएंट 2 रिया पांडे, रेसिपिएंट 3 आरती राय, रेसिपिएंट 4 अरुण श्रीवास्तव। ओके, अभी ये आगे के रेसिपिएंट्स और पीछे के रेसिपिएंट्स भी आप चेक कर सकते हो वापस जाके। ओके, ये मेरा काम हो गया यहाँ पे। नाउ दिस स्टेप इज कंप्लीट। what we will do next, we'll go to the bottom of the page, okay, and click on 5th step which is complete the merge। तो अभी इस पर क्लिक किया and here we come to the last step which is 6th step and we'll go to print where the letters would be printed and you can send it to the people you want। okay, you must have had a proper address of these people where you want to post these letters। That's how the mail merge works students। अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में काइंडली आस्क मी अबाउट द प्रॉब्लम्स अबाउट द चैप्टर। ओके, एंड आई होप you have understood it well। if you have not understood it well, there is a problem in doing practical or anything, kindly tell me in the comment section students। okay, I hope you have understood it nicely। so students, now I'll be ending my chapter here। don't get confused। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतने अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपके पास कंप्यूटर है अपना, then kindly practice it for some time, you will understand, it's very easy। okay students, till then take care and do not step out of the house।